Okay, so very good afternoon, everyone. Hope all of you are being fine. Okay, guys. Just a second. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, guys. Okay, guys. So we were talking about biodiversity and conservation. I hope everyone completed with the part of the whole ecosystem. Complete हो गया वहाँ तक अच्छे से. Everyone done with the ecosystem and the first one that we have started with the right. Good, very good. ओके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोसिस्टम. चलो सबसे पहले तो डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोसिस्टम के क्वेश्चंस. देन आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट. से फिर शुरू करूँगी. हाँ जी. सो माइक्रोब्स के भी रह गए थे ना क्वेश्चन अभी डिस्कस करने के लिए क्लास में. बोलो पैकेजेस. फिर एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. देन आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक. Okay, everyone. Okay, anyone of you share the class link as well? Okay, everyone. So microbes in human welfare. Starting with the questions. Hanji, any doubts in this question, guys? Hanji. Any specific doubt in this question? In this paper, in this chapter, microbes. सबके हो गए questions complete? Yes or no? Everyone done with all the questions? Yes. Okay. Good. Right. So और कोई भी doubt बचे microbe chapter से related, right? Question से related. Level 2, level 1. तो पहले level 2 से start करते हैं. Yes, everyone. Completed level 2 के question सबके. Section B 24th question. Okay. Level 2 में बेटा. So we are having the section B question number 20. Okay. Yes, Sushant. Which one of the following is an example of carrying out biological control of pest or disease? Right, using microbe. All the options are correct. Right, इस question के अंदर सारे options correct है. BT cotton to increase the cotton yield also. Ladybird beetle also, Trichoderma species also, and NPV virus also. Right, so all these questions are being correct. Right, इसमें बस आपको ये देखना है कि इनमें से सबसे ऐप में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कौन सा है. राइट, सबसे ज़्यादा यूज़ बीटी कॉटन को किया जाता है, इसीलिए आंसर बोलिए. अदरवाइज एवरी पर्टिकुलर पॉइंट इज करेक्ट. फाइन. राइट, तो हर चीज़ इसमें से करेक्ट है. यस. नेक्स्ट वन बच्चे. Beside paddy fields, cyanobacteria are also found in the vegetative part of. राइट, पैडी फील्ड्स के अलावा साइनोबैक्टीरिया किसमें मिलता है? साइकस, एनाबीना साइकोडेल. राइट, साइनोबैक्टीरिया मिलता है ना हमारे पास. पैडी फील्ड तो राइस में हो गया, एनाबीना जोले के साथ हो गया आपका एसोसिएटेड. राइट, और साइकस के साथ होता है, दैट इज एनाबीना साइकोडेल. ठीक है बच्चे. राइट. यस. यस, क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर हो गया. Okay, now the next one, domestic sewage in the large cities. ये question तो इसी में मैंने बताया था. Domestic sewage in the large city have high BOD as it contain both aerobic and anaerobic bacteria. फटाफट से मुझे आंसर बताते जाओ इसमें क्या होगा. Right, it is being saying that high HOD, high BOD, right, as it is containing both aerobic and anaerobic, contain only aerobic one. Right, उसी के साथ साथ आपका process by aerobic then anaerobic in the secondary treatment plan. No. When treated in STP does not require the aeration step तो चाहिए होता है हमारे पास and has a high amount. क्या होगा आंसर? फटाफट से चाहिए. Tell me this one. Right, 16 का 1 by 1 is being there क्योंकि BOD ज़्यादा होता है. Aerobic anaerobic bacteria heterotrophic microbes are being present. इसमें ज़्यादा proportion aerobic का होता है. अगर हमें ऑप्शन में से मान लो कोई और ऑप्शन करेक्ट होता है इसके अलावा,
तो वी टेक दैट एज एन आंसर, क्योंकि इसमें एरोबिक ज़्यादा रहते हैं हमारे पास, एनारोबिक कंपैरेटिवली क्या रहते हैं, कम रहते हैं। तो हम कहेंगे स्पेसिफिकली हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स में एनरिच्ड होता है, तो वी विल टेक दैट एज एन आंसर। क्लियर हुआ अंकुर? फाइन, यस। एनी अदर क्वेश्चन इन द माइक्रोब बेटा? माइक्रोब से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन किसी को भी क्लास में? राइट, अच्छा क्वेश्चन नंबर एक देखो 3 4 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग होगा। राइट, सी द वन, राइट, AIPMT prelims 53rd question, okay beta, right, 2010 question it is, right, just go for it, right, question correct statement from the following, right, इनमें से yes बेटा। अब आपका next question है 2012, that is the most abundant prokaryote help to human in making curd, right। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमारे पास the most abundant prokaryote, right, helpful to human, that is Lactobacillus acidophilus, which is going to be heterotrophic bacteria, राइट। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहेंगे हम इसके अंदर। सेकंड ऑप्शन इज बीइंग द करेक्ट, क्योंकि उसका आप मेन लेके चलोगे तो इट्स एन हेटेरोट्रॉफ इटसेल्फ, राइट। तो आप हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया उसको कंसीडर करोगे, राइट। यस, नेक्स्ट first chemosynthetic bacteria, chemosynthetic autotrophs बेटा, chemosynthetic autotrophs is being the one, right। जो remember नाइट्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया लेके चलते हैं हम यहाँ पर, उन्हें हम कीमोसिंथेटिक कहते हैं, राइट। जो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं, दैट आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स जिसे हम पढ़ते हैं, राइट। तो वो, लेकिन लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इज अ सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया इट इज, राइट। जो हमारे पास सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, राइट, व्हिच इज बीइंग रेफर्ड एज द हेटेरोट्रॉफ, हम उसे रेफर करते हैं। क्लियर बेटा? यस, नेक्स्ट एनी अदर क्वेश्चन फॉर दिस? Okay, right. Yes, 53rd question था एक second. If we move to that, 53rd question. Right, one of the most difficulty वाला question है बेटा ये पूछ रहा हूँ। One of the major difficulty in biological control of the pest or insect. Right. Yes. Okay. Now tell me the answer, guys. 53rd one. Right. One of the major difficulty in biological control of the insect or pest. Insect or pest का अगर biological control करना है, राइट। तो सबसे मेन डिफिकल्टी हमारे पास क्या है, राइट। द मेथड इज लेस इफेक्टिव एज कंपेयर टू द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, राइट। practical difficulty of introducing predator to the specific area. Predator develop a preference to other diet, and predator do not always survive and transfer to the new environment, राइट। हम इसमें क्या लेके चलेंगे, हम यहाँ पर ये बेसिकली कह सकते हैं, हाँ ये ठीक है, हमारे पास मेजर डिफिकल्टी पूछो, सारी चीजें ठीक है, क्योंकि सारे आपके यहाँ पर पॉइंट्स हैं जो रेफर किए जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, हमारे पास इतना ज़्यादा अच्छे से हमें वहाँ पर प्रेडेटर और इंटरेक्शन अगर हम देखेंगे तो वी डू नॉट गेट अ बेटर रिजल्ट ओवर देयर, राइट। लेकिन अगर हम इसके अंदर यहाँ पर देखते हैं कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, राइट, व्हेन वी से कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या जाएगा, व्हेन वी विल टेक द बेस्ट ऑप्शन क्राइटेरिया अगर मैं लेके चलूँ, राइट, तो मेरे पास क्या आंसर जाता है, दैट इज बीइंग द सिचुएशन व्हेन आई विल से कि प्रेडेटर हमेशा डू नॉट ऑलवेज सर्वाइव एंड ट्रांसफर टू द न्यू एनवायरनमेंट, क्योंकि जब आप नए एनवायरनमेंट में ट्रांसफर करोगे तो उनकी एक रिसेप्टिव टेंडेंसी हो जाती है उस एरिया में अडाप्ट करने की, तो वो रिसेप्टिव टेंडेंसी नहीं रह पाती, राइट। जरूरी नहीं है कि हर एक पर्टिकुलर इंसेक्ट ऑफ पेस्ट या गैंग्स जो प्रेडेटर दे रहे हो वो हर जगह सर्वाइव कर सकते, राइट। तो सर्वाइवल इशू आर द फर्स्ट वन जिसको आप लेके चलोगे। यस, नेक्स्ट इसके बाद any other question for section B, section C? Completed? C तो आपने नहीं किया होगा, खैर सेशन B तो आपके पैकेजेस में होगा भी नहीं वाला, राइट। नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाएं। माइक्रोब्स कंप्लीट है सबका अच्छे से? यस और नो गाइस, आई वांट द आंसर फ्रॉम एवरीवन सो दैट आई गेट टू नो कि हाँ ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट सबका, तो मैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से स्टार्ट करूँ। ओके गाइस, राइट, सो लेट्स बिगिन विद द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और भी किसी की कोई डाउट हो तो बीच में मेंशन करो। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कंप्लीटेड है सबका? Good, right. So now move to the organism and population level 2 assignment section A. So सबसे पहले section A से related question, then I'll move to the section B. Yes, everyone. Completed with the section A part. Level 2. Okay, now answer me the question number 16 for this. 16 का आंसर करो जरा।
Select the correct statement with respect to adaptations. Right, quickly go for this and tell me the answer. 16th, फिर मैं उसके बाद आगे biodiversity conservation पे चलूँ. क्या होगा correct statements के अंदर? 16th question, section A, level 2, correct statement with respect to adaptations. Number 4, desert lizard bask in the sun and absorb heat when their body temperature drop below the comfort zone. Next, to stop experiencing altitude sickness, the body compensates low oxygen availability by increasing binding affinity. Right, first. Right, अगर हम यहाँ पर देखें second option, तो second option में क्या बोल रहे हैं? Right, it compensate the Okay. Now अब हमने second option में देखो क्या गलती है second option में mistake. Right, unmute yourself guys and say the answer. Right, what's the mistake in that? In the second option. By increasing binding affinity होना चाहिए, decreasing होना चाहिए. Right, so we simply say by decreasing binding affinity, ना? बिल्कुल decreasing. Right, third के अंदर mammal of the cold climate generally have larger ear and the limbs to minimize the body heat. Right, क्या होना चाहिए इनके अंदर? Smaller. Right, smaller ear size and limbs होने चाहिए हमारे पास. Yes, and the desert plant have thin cuticle on their leaf surface. Right, what's there? That they are going to have the thick cuticle. Right, thick cuticle होना चाहिए on the body surface. ठीक है. Right, on the same page, question number 15. Question number 15, fill in the blanks. Right, मुझे सारे option बताना है इसके अंदर 1 to 6 जितने भी हैं. Go for that. फटाफट से 15 का. All the options. Yes, guys. Consider the following statement A to D, right? With each with one or two blanks. के साथ हमें यहाँ पे बताना है. Some snails go into dash to avoid dash related problems. क्या कहूँ मैं इसके अंदर? Yes, everyone. Some snails go into किसमें जाएंगे हमारे पास? Right, very good. Some snails go into estivation to avoid the winter related, summer related problem. Right. So to avoid the summer related problem, estivation, summer sleep होती है ना? Right. फिर उसके बाद since small animals have right larger surface area related to the volume, they tend to lose the body heat. Right, body heat को कैसे lose करेंगे? Very fast when it is cold outside. Right, next to temperature, dash is the most ecological factor. Water is the most ecologically important factor, environmental factor. Every dash, every year, right, her basically year में, that is being the one, the famous Corridor National Park in the Rajasthan hold thousands of the migrant birds. Clear? तो छोटे छोटे questions हैं जो ध्यान रखने हैं. तो section A done है. कोई doubt बेटा section A में किसी को भी? आगे बढ़ो section B पे. हाँ जी बेटा. Okay, any other point for section A? Chalo. Next, moving to the section B. Question number second. Second आपका कौन सा match the column वाला question है या which of the following population interaction वाला question कह रहे हो? Right, देखो antibiotic की study के लिए कह रहे हो तो mentionism हुआ. Right, और अगर आप यहाँ पर match the column के लिए कह रहे हो, right, तो कौन सा question कह रहे हो हमको? Right, मैं discuss ही कर रही थी. चलो match the column वाला का question कहते हैं column 1 and 2. Right, so we can simply say that the saprophyte is being the one which performs the decomposition. Parasite is being the one living on or on living plant or animal. Lichen is being the one right with symbiotic association of algae and fungi. Mycorrhiza is symbiotic association with the plants. Right? Okay. अच्छा ये question इसमें नहीं है. Right. Next जो आपका आता है यहाँ पर question. Right. Decline in the population of Indian native species due to clarius. राइट ये भी पढ़ा नहीं आपने इसलिए क्वेश्चन हुआ नहीं होगा. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी वाले में आज पढ़ाऊंगी इसके अंदर. राइट दैट्स बेसिकली क्लैरियस का क्या था? एलियन स्पीशी इन्वेजन की वजह से एलियन स्पीशी इन्वेजन. राइट हाँ जी.
उसके अलावा नेक्स्ट पेज आपका क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 15। तो अगर वहां पर देखें तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 1 to 15। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट एनी अदर क्वेश्चन इन द सेक्शन बी गाइस? सेक्शन बी से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन? ओके, राइट, मोस्ट एनिमल्स आर ट्री ड्वेलर्स। हाँ, ये क्वेश्चन है, राइट। ट्री ड्वेलर्स अगर हम कहेंगे अधिकतर एनिमल्स को, इफ यू आर सेइंग दैट दे आर गोइंग टू बी ट्री ड्वेलर्स का मतलब जो ट्री पे ही रहते हैं स्पेसिफिकली, राइट। तुमने कहा ट्री ड्वेलर्स है तो जिसमें लॉन्ग ट्री होंगे, जिसमें कैनोपी बहुत ज्यादा होगी, वहां पर रहेंगे ना, राइट। और कैनोपी किसमें ज्यादा होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्ट्रैटिफिकेशन का प्रोसेस मिलता है, right? So on that regard you will say it is following this particular process. There are tree dwellers in, right, that is the tropical rainforest. समझ आया point? Yes, next woody vines। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन है, एक बच्चों को बहुत बार डाउट आता है। लेट मी सी किस पेज पे। हाँ, लार्ज वुडी वाइन्स आर कॉमनली फाउंड इन वुडी एरिया किसमें मिलता है? अगेन बायोम कौन सा है हमारे पास? राइट, इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अच्छा, ये बायोम वाला पार्ट पढ़ा आपने जो मैंने नोट्स आपके साथ शेयर किए थे मैंने, वैसे इकोसिस्टम के ऊपर, उसमें बायोम वाला पार्ट भी दे रखा है, राइट। वो बायोम वाला पार्ट पढ़ने क्वेश्चंस हो जाएंगे उससे, राइट। ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी डन वंस यू विल रीड दैट बायोम पार्ट, ठीक है। मैं आज एक बार रिकैप दे दूंगी उसका, राइट, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट। इसके अलावा और सारे क्वेश्चन सबके हो चुके हैं या सबने किसी ने किए ही नहीं है? Why I am getting only the doubts from 1 or 2? Rest everyone has done the questions? Okay, good, then it's good. बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने लगते हो यार फिर तो। चैप्टर में क्वेश्चंस के डाउट नहीं आए किसी को? Good. Right, okay everyone. So this is basically we talk about this. अच्छा, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर मीन एंड मीडियम वाला क्वेश्चन है, right? If mean and median pertaining to a certain character in a population of same value, the more population will more likely to have a normal distribution curve. Population का आपको एक normal distribution curve मिलेगा, not a skewed curve you are going to found, right? Normal distribution curve is going to be present at that particular point, right? तो ये बस थोड़े से points अच्छे से ध्यान रखने हैं, else it is being clear. तो I hope अभी complete हो गया होगा सबका। तो आप पहले बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। फिर आपका मैं आगे नेक्स्ट पार्ट दैट इज बायोम और इकोसिस्टम के डाउट्स पे चलूंगी, राइट। Okay, so let me share the screen with you and let's start with the topic. Okay, right. So this is what we were talking in the biodiversity part, right? The biodiversity में हमने कुछ levels of biodiversity पढ़ी थी. I hope everyone remember. And in the levels of biodiversity, how many levels we have studied, everyone? How many levels of the biodiversity is there? जल्दी से कितने लेवल्स थे हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के? राइट, सो वी सिंपली से दैट देयर आर बीइंग द 3, वेरी गुड, 3 लेवल्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी आर बीइंग देयर, and among the 3 levels we will say the very specific or small level is basically being the one which is defined as the right genetic diversity, जिसमें आपने different varieties और सब species पढ़ी थी एक particular species की। फिर उसके बाद आप यहाँ तक गए थे when you talk about the different species present in an area, there you define the species diversity, and when we talk about a complete community, right, then we will define as the whole, right, जिसको हम define करते हैं, right, आपका पूरा का पूरा that is called ecological diversity, right। अब हमने कहा यहाँ पर बच्चे डाइवर्सिटी के बाद हमने कहा था कि अगर ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं तो मुझे एक उनके पर्टिकुलर नंबर चाहिए कि कितने ऑर्गेनिज्म किस पर्टिकुलर प्लेस पे प्रेजेंट है, राइट, और कितने कितने ऑर्गेनिजम्स मुझे मिल रहे हैं एक ग्रुप के अंदर भी, राइट। तो मेरे को ये पता चला कि ठीक है, अगर हम किंगडम्स की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। स्क्रीन शेयरिंग इज स्टॉप्ड, ओके, वेट। Is it visible to everyone? Fine? Yes, ma'am. Right. Okay, guys. Right. So now moving to this. अब हमने देखो यहाँ पर डिफाइन किया था कि हमने अगर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन सब के बारे में देखना है, इन सब के बारे में पढ़ना है, तो वी विल से कि हमने कहा कि प्लांट
के जो है नंबर्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द एनिमल। हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ स्पीशीज गिवन इन द एनसीईआरटी वही आपको याद करनी है बच्चे, राइट। और नंबर में स्पेसिफिकली नंबर नहीं तो उसका ऑर्डर याद करो कि किसमें कितने ज़्यादा है और किसमें कितने कम है, मतलब एक डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर याद कर लो, राइट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, एज कम्पेयर टू दिस। फाइन, अब हमने यहाँ पर डिफाइन किया था इसमें लास्ट टाइम कि प्लांट्स एनिमल्स के अंदर हमारे पास इतने मेंबर्स होते हैं और एनिमल्स के ज़्यादा मेंबर होते हैं, एनिमल्स में से भी इंसेक्ट के ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट वी स्टेटेड, राइट। जिसके बेसिस पे हमने कहा था ठीक है हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन होता है और बैक्टीरिया के नंबर्स हम काउंट अप नहीं कर सकते, राइट। सो नेक्स्ट फॉरवर्ड हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि अगर हम कहते हैं कि ठीक है हमारे पास इतने ज़्यादा मेंबर्स प्रेजेंट है तो इंडिया का क्या स्टेट है उनमें से, व्हाट्स द स्टेट ऑफ द इंडिया एक्चुअली, राइट। इंडिया का क्या स्टेट है हमारे पास उसके अंदर, राइट। तो वी विल टॉक अबाउट दिस, just a second, right. Now if we will say, right, कि अगर हम इंडिया का स्टेट यहाँ पर देखते हैं तो हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया कि टोटल हमारे पास इस पूरे अर्थ पे हमने 12 मेगा डाइवर्सिटीज बनाई है, 12 mega diversities are here, and among the 12 mega diversity India ranks among them as 8th, right. So India is among one of the biodiversity or one of the mega diversity, मेगा डाइवर्सिटी में से एक ग्रुप हमारे पास इंडिया का है, राइट। उसमें से हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि इंडिया में हमने क्यों कहा इट इज बीइंग वन ऑफ द मेन जो आपका मेगा डाइवर्सिटी का पार्ट बनता है। इंडिया इज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, राइट, जिसमें 8.1% का ही टोटल आपका ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी का कंटेंट है, राइट। जिसमें से जिसकी वजह से इंडिया टोटल 12 मेगा डाइवर्सिटी में से एक पार्ट बनता है और स्पीशीज बहुत ज़्यादा है इसके पास, राइट। और ऐसा इसी वजह से बेटा बिकॉज इंडिया इज हैविंग दी 10 मेजर biogeographical zones, right. So we have the 10 major biogeographical zones found in India, right. तो इंडिया के अंदर हमें मिलेंगे 10 मेजर बायोजियोग्राफिकल जोन्स, और वो जो 10 मेजर बायोजियोग्राफिकल जोन्स जो हमें मिलेंगे उसके अंदर, राइट, वो अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें से सबसे मेन एक का ही नाम याद रखना है बस, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोजियोग्राफिकल जोन इज द हिमालयन एरिया, राइट, दैट्स द हिमालयन जोन, राइट। हिमालयन जोन इज बीइंग द वन बेटा जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्स है, it is called as the most biodiverse group, right. तो सबसे बड़ा biodiverse group है, right, with highest species diversity, right. सभी में से सारे biogeographical zone में से सबसे ज़्यादा species diversity इसके पास है, right. तो we define it's the most biodiverse group आपका present है, that's the Himalayan zone which is being found. और इस हिमालयन जोन में जहाँ हमने कहा बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है हमारे पास, कितना बायोडाइवर्स ग्रुप है, राइट, हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी है इसके अंदर, राइट। सो ऑन दैट ग्राउंड वी विल जस्ट से दैट, राइट, इट इज़ वन ऑफ द मेजर हॉटस्पॉट। अभी मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी हॉटस्पॉट का मीनिंग। हॉटस्पॉट हम उस एरिया को कहते हैं बेटा जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट, उसे हम हॉटस्पॉट का नाम देते हैं। और यहाँ पर एक्चुअली हमें हॉटस्पॉट क्यों दिखा, क्योंकि यहाँ पर हमें स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा दिखती है, राइट, इसी वजह से हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया, राइट। क्लियर एवरीवन, राइट। तो ये हमने यहाँ पर पार्ट कहा, राइट। उसी के साथ साथ वी विल डिफाइन इफ वी एक्सेप्ट द मे ग्लोबल एस्टिमेट ओनली 22% ऑफ द स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, राइट, अभी तक रिकॉर्ड की गई है और अभी तक रिकॉर्ड ज़्यादातर तो की भी नहीं गई है। देन वी गेट टू नो कि जो नेचर्स की बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरी है वो बर्न करी इतनी जल्दी कि अगर हम इस बुक को पढ़ते हैं उतने देर में हमारे पास इतनी ज़्यादा एक्सटिंक्शन हो रहा है। अगर अच्छा सबने सुना होगा, राइट, बेसिकली अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट का डैमेज और डैमेज ज़्यादा स्टार्ट, राइट, सॉरी 19 में, राइट। और उसके बाद 2020 पूरा आपका यहाँ पर उसमें अंदर बहुत अच्छे से पूरा डैमेज चलता रहा, राइट, बहुत अच्छे से डैमेज होता रहा। अब जाके फॉरेस्ट फायर थोड़ा सा हम कहते हैं कि हाँ स्लो रेट पे हुआ है जिसकी वजह से डैमेज कम हो रहा है शायद, राइट, लेकिन इट्स बीइंग द वन जिसने बहुत ज़्यादा एरिया को डिस्ट्रॉय किया है, राइट। दैट इज़ व्हाट अ नेचुरल डिस्ट्रक्शन है, एक नेचुरल डिस्ट्रक्शन हो रहा है हमारे पास कि हाँ वहाँ पर उस नेचुरल डिस्ट्रक्शन से ऑर्गेनिजम्स हमारे पास डैमेज हुए, राइट। तो वी विल डिफाइन दैट एज कि नेचर्स पूरी बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ दिस बुक, राइट। तो ये हम बेसिकली इसके अंदर डिफाइन करते हैं एज अ होल कैटेगरी फॉर दिस, राइट। अब हमने कहा कि हम इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट, तो व्हाट आर द मेन 2 पैटर्न्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। आप अगर बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हो तो आप क्या 2 पैटर्न्स लेके चलोगे जिसके बेसिस पे आप इसको पढ़ोगे, राइट। तो हम 2 पैटर्न्स क्या लेके चलते हैं, वन इज कॉल्ड लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, अदर इज कॉल्ड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। एक हमने क्या कहा है यहाँ पर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और एक हम क्या कहेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, राइट। दे आर द 2 मेन पैटर्न्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। हमें पैटर्न्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। वी से डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल,
प्लांट्स के एनिमल्स की डाइवर्सिटी जो है वो पूरे अर्थ पे यूनिफॉर्म नहीं होती, जिसकी वजह से मुझे उसको लैटिट्यूडनल बेसिस पे जब मैं स्टडी करती हूँ तो उसी को मैं नाम देती हूँ एज अ लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और ऑल्सो कॉल्ड एज द मास्टर ग्रेडियंट। इसको हम एक नाम और क्या देते हैं बेटा, विच इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्रेडियंट, राइट। अब मैंने अगर इसको यहाँ पर डिफाइन किया, राइट, तो वी विल से कि हमारे पास अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? इफ आई एम मूविंग डिक्रीजेस, वेरी गुड, क्योंकि अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास, राइट, ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, डिक्लाइन होंगे, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, राइट। सो ऑन दैट बेसिस अगर हमने कहा कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, राइट, तो इसी वजह से हमने उसकी कुछ रेंजेस बना दी कि ठीक है अगर हमारे पास डिक्रीज हो रहा है तो दिस इज बीइंग द वन की डाइवर्सिटी आपको हर जगह इक्वल नहीं मिलेगी, दे शो द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है थ्रू आउट द एरिया, राइट, जिसकी वजह से हमें कहेंगे ग्लोबल डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, राइट, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस के साथ अगर देखा जाए तो मेनली बहुत कम एक्सेप्शंस अगर आप हटा दो तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दैट इज ट्रॉपिकल जोन्स ऐसे हैं, राइट, जो ज़्यादा स्पीशीज को हार्बर करते हैं एज कम्पेयर टू द टेम्परेट जोन, राइट। टेम्परेट जोन के कंपैरेटिवली ट्रॉपिक जोन के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स ऐसे मिलते हैं जो कॉन्स्टेंट स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखे हुए हैं, राइट, विच आर द वन विच विल फाउंड विद मेन ईज एट दैट पॉइंट, राइट। तो अब उसके बेसिस पे अगर हमने कहा यहाँ पर तो वी विल से ट्रॉपिक इज बीइंग द वन जो हार्बर more species than the temperate or the polar area. अब we will say कोलंबिया जैसे कि इसके एग्जांपल्स, अच्छा ये जितने एग्जांपल्स एनसीईआरटी मेंशन है बेटा ध्यान रखने, नंबर फर्स्ट एग्जांपल है कोलंबिया लोकेटेड नियर इक्वेटर, nearly 14,000 species of the bird. The New York has 105 and Greenland has only 56 species. और इंडिया विद मच ऑफ द लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के अंदर उसके पास 1200 स्पीशीज बर्ड की प्रेजेंट है, राइट। तो इफ यू आर मूविंग दैट इज अक्रॉस द लैटिट्यूड के अक्रॉस आप जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि स्पीशीज डाइवर्सिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, right, but in the direction when you are moving from the equator to the pole but not in the opposite direction, right। फिर उसी के बाद आया हमारे पास another tropical rain forest which is called Ecuador, right। So the second one that is a forest in the tropical region है हमारे पास Ecuador, right, जिसमें up to 10 times as many species of the vascular plant present in, right, as a forest of equal area in the temperate region में जो present है, राइट। तो जो उसमें प्रेजेंट थी उतनी ही आपके उससे 10 टाइम्स ज़्यादा वैस्कुलर प्लांट्स के मेंबर्स वहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। सो दैट इज व्हाट वी स्टेटेड एज अ कैटेगरी, राइट, जो हमने यहाँ पर स्टेट किया गया, यहाँ पर अनदर एग्जांपल बना। एंड द लास्ट एग्जांपल इज द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट बेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई आई एम रिपीटिंग इट, बिकॉज इट्स अ लंग ऑफ द प्लैनेट। ये प्लैनेट का एक ऐसा पोर्शन है जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन का डिस्पर्जन होना, राइट, प्रॉपर हमारे पास यूसेज होना, वो सब कुछ हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन कैसे एनवायरमेंट में रिलीज हो रही है बिकॉज ऑफ दिस ओनली, इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, राइट। और उसी के बेसिस पे उसकी डाइवर्सिटी भी देखो डिस्कस की हुई है। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, राइट। अब इसमें स्पीशीज के नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, विच हैव बीन गिवन, ओनली रिमेंबर द ऑर्डर। ये इंवर्टेब्रेट के मेंबर ज्यादा है, फिर प्लांट्स के मेंबर ज्यादा है, फिर एनिमल्स के मेंबर्स हैं, एनिमल्स में एनिमल के नंबर तो खैर ज्यादा है लेकिन फिर फिशेस के नंबर है, राइट, बर्ड्स के नंबर्स हैं, मैमल्स के नंबर्स हैं, एम्फीबियंस के नंबर है, राइट। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तब आप उसको डिफाइन करते हो एज अ कंपनी कि जो अपने यहाँ पर डिफाइन करते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंगली उसे अरेंज करते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टडी करते हैं, राइट। लेकिन अब एक हमारे पास दिमाग में एक पॉइंट आया कि ठीक है हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, right, we talk about the Amazonian rainforest also, we talk about the Ecuador also, right, हमने मास्टर ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि ट्रॉपिक के पास बायोडाइवर्सिटी क्यों है, एनीवन हैविंग अ रीजन, राइट, व्हाई ट्रॉपिक इज हैविंग द हायर बायोडाइवर्सिटी एज कंपेयर टू द टेम्परेट एरिया, सोचो एंड टेल मी दैट। फाइन, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक है, राइट राजुल, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इन द ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसके अलावा राइट, सीजनल फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होती है, गुड अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, फाइन फाइन गुड, राइट। तो अगर हमने यहाँ पर देखा, राइट, तो वी विल से द वेरी फर्स्ट थिंग, राइट, सबसे पहला हमारे पास इसके अंदर आया कि व्हाई ट्रॉपिक्स compared to
टेम्परेट, राइट, क्यों मोर सोलर एनर्जी, राइट रजुल, बिल्कुल राइट। हमने सबसे पहले बिल्कुल सबसे पहले हमने कहा यहाँ पर देयर इज नो फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशन और कैटास्ट्रॉफ, कोई फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशन, कोई कैटास्ट्रॉफ्स नहीं है फाउंड इन ट्रॉपिकल एरिया और ट्रॉपिकल जोन। अब कैटास्ट्रॉफ्स क्या होते हैं? कैटास्ट्रॉफ्स आर एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस। कोई इतनी फ्रीक्वेंट चीजें नहीं होती कि जिसकी वजह से राइट इट विल डिस्टर्ब स्पेसिएशन, कि किसी भी तरीके से स्पेसिएशन को डिफर करे, क्योंकि हम ये जानते हैं राइट कि स्पेसिएशन अगर हो रहा है हमारे पास तो वो आपका एक कांस्टेंट रेट पे अगर हो तो हम ये बेसिकली कहेंगे कि कांस्टेंट रेट पे हमारे पास होना चाहिए ताकि उस एरिया पे ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज ग्रो कर सके और वो अनडिस्टर्ब्ड रहे, राइट। तो वी विल से ओवर हियर राइट स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशन tropical latitude have remained undisturbed for the million of years, right? That's why had a long evolutionary time for species diversification. Species diversification के लिए अच्छा खासा टाइम होता है, right? तो अब हमने यहाँ पर डिफाइन किया इसको ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट अनलाइक द टेम्परेट। सेकेंड रीजन राइट सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं है। एक आपको याद हो तो मैंने एनुअल रिंग का बताया था, राइट? एनुअल रिंग के बारे में याद आ रहा है थोड़ा सा? कैम्बियम रिंग मैम प्लांट्स में होती है जो, हाँ, और एज बताती है प्लांट्स की, एज बताती है। इसके अलावा सोचो, एनुअल रिंग का एक याद है आपको पॉइंट बेटा? इट्स बीइंग द वन फैक्ट व्हिच इज बीइंग डिफाइंड कि हम यहाँ पर कहते थे इसके अंदर कि एनुअल रिंग हमारे पास स्प्रिंग रिंग और ऑटम रिंग दो रिंग्स में बनती है, राइट, बिकॉज ऑफ दैट द सीजनल फ्लक्चुएशंस की वजह से, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर उसके अंदर जबकि टॉपिक में पढ़ा था देयर इज नो सच डिमार्केशन इन द एनुअल रिंग। एनुअल रिंग में कोई डिमार्केशन नहीं होती है। याद आ रहा है पॉइंट? स्प्रिंग वुड अर्ली वुड वाला पॉइंट, राइट? ऑटम वुड जिसमें स्प्रिंग रिंग बनती है, ऑटम रिंग बनती है, राइट? दैट्स अ फैक्ट। सो वी विल डिफाइन ऑन द सेम ग्राउंड पे हमें डिफाइन करते हैं कि ट्रॉपिक एरिया में ऐसी कोई सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं होते हैं, राइट? सो देयर इज नो सीजनल फ्लक्चुएशंस in tropic zone that is having the constant and predictable, constant है और predictable seasons in tropic के अंदर आपको अगर ऐसा है एकदम constant और predictable कर रखिए तो इसकी वजह से क्या होगा? it support niche specialization, ecotype diversification, अलग अलग ecotype बनेंगे, and high species diversity। ये पॉइंट हमारे पास स्पेसिफिकली हो जाएंगे जो हमने कहा हमारे पास मेन दो रीजन हुए हमारे पास। नाउ द थर्ड वन, देयर इज डायरेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द सनलाइट। डायरेक्ट अवेलेबिलिटी की वजह से प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? हाई हो गई, एंड हाई प्रोडक्टिविटी मीन्स मोर स्पेसिएशन। इकोसिस्टम के फंक्शन सब बैलेंस हो जाएंगे ना, तो स्पेसिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ये सब पॉइंट्स हो गए जो हमने डिफाइन किया। अभी क्लियर हुआ पॉइंट? Clear with this? Right. Now,
अब हमने कहा बच्चे ये जो दो हमारे पास हो गए पॉइंट्स, इन दो से रिलेटेड नाउ वी विल से कि अब हमें पता चल गया कि ठीक है ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा हो गया टेम्परेट के कंपैरेटिवली, ये भी हमें पता चल गया. वी गेट टू नो लैटिट्यूडनल और ये बेसिकली कंपोनेंट्स क्या होते हैं. इसके अलावा हम ये कहते हैं राइट कि वी विल से इफ वी विल डिफाइन, अगर हम एक्सप्लोर्ड एरिया को बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द एक्सप्लोर्ड एरिया, अगर मान लो मैं किसी भी एरिया पे जैसे सर्च कर रही हूँ, मुझे स्पीशीज इतनी मिली, अब मैं अगर उस एक्सप्लोर्ड एरिया को बढ़ाऊंगी तो क्या मेरे पास स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी या कम होगी? क्या होता है मेरे पास उसमें? व्हाट्स द प्रोसेस राइट? अगर मैं वहां देखूंगी, इफ आई इंक्रीज द एक्सप्लोर्ड एरिया, इज स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? इंक्रीजेस राइट. अगर हमने कहा मान लो अगर आज मैं एक एरिया में देख रही हूँ, दैट इज आई एम स्टैंडिंग एट वन जोन राइट, मैं दिल्ली में अगर ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली को सर्च करती हूँ तो ठीक है मुझे इतनी डाइवर्सिटी मिल रही है. मैंने कहा नहीं, मुझे ना डाइवर्सिटी राइट, अगर मैं इसमें नॉर्थ दिल्ली को भी इंक्लूड कर देती हूँ तो मेरे पास डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी. अगर मैं इसको ईस्ट वेस्ट दिल्ली को भी इंक्लूड कर दूंगी तो मेरे पास डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी राइट. सो ऑन दैट रिगार्ड हमने यहाँ पर कह दिया कि मेरे पास स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी राइट. सो उसी वजह से हमने यहाँ पर कहा कि हमने कहा स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी लेकिन अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक बढ़ेगी स्पीशीज डाइवर्सिटी. क्या मीनिंग है इसका? अप टू अ लिमिट कहने का क्या मतलब है कि अगर हम ये कहते हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी हमारे पास बढ़ रही है बेटा राइट, इफ वी विल से स्पीशीज डाइवर्सिटी इज इंक्रीजिंग राइट, लेकिन आप ये भी तो सोचो जब आप एक्सप्लोर्ड एरिया पे डाइवर्सिटी को बढ़ा रहे हो, उस एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाने की वजह से तो क्या न्यूट्रिएंट्स की लिमिटेशन शुरू हो जाएगी कुछ टाइम के बाद? देयर इज अ प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिएंट लिमिटेशन. न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं वहां पर एलोकेट हो पाएंगे, न्यूट्रिएंट लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो हमने कहा जब न्यूट्रिएंट लिमिटेशन स्टार्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं है वहां पर प्रेजेंट राइट, तो उसकी वजह से आगे स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन होना तो मुश्किल है ना राइट. तो उसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को हम डिफाइन करते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जिसने क्या कहा कि विद इन ए रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक. और उसने इस रिलेशनशिप को स्ट्रेट लाइन ना देके, अलेक्जेंडर वॉन राइट हम्बल्ट ने इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन ना देके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप दी, that it will increase but only increase happen up to a desired limit, उसके बियॉन्ड इंक्रीज पॉसिबल नहीं है. तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक पर्टिकुलर जोन पे, तो ही फाउंड दैट द वाइड वैरायटी ऑफ द टेक्सा विल बी देयर टर्न आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला राइट. और उसकी लॉगरिथमिक इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन तो हमारे पास ये आई s इज इक्वल टू सी ए रेज टू पावर z राइट. तो हमने कह दिया इक्वेशन इक्वल्स टू s इज इक्वल टू सी ए रेज टू पावर z, हमने इक्वेशन दे दी जहां पर मेरे पास s इज द स्पीशीज रिचनेस, a इज द एक्सप्लोर्ड एरिया राइट, सी आपके पास y इंटरसेप्ट हो गया और z आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट, कितना रिग्रेस कर रहा है अगर स्पीशीज रिचनेस हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसके बेसिस पे राइट. तो वी विल डिफाइन दैट्स बेसिकली बीइंग अ कंडीशन, जो हमने कहा स्पीशीज एरिया रिलेशन राइट. देन वी विल से उसी के बाद हमने कहा यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखते हैं तो हमें z की वैल्यू इस तरीके से वेरिएबल मिलती है. एंड अगर हम कहते हैं यहाँ पर राइट कि आप अगर इसके अंदर एनालाइज करते हो इसको लार्ज कॉन्टिनेंट्स के अंदर, लार्ज एरिया पे अगर आप एनालाइज करते हो तो स्लोप ऑफ द लाइन नीड टू बी मच स्टीपर राइट, स्टीपर होनी चाहिए स्लोप ऑफ द लाइन, उसके लिए स्टीप होनी चाहिए अगर हम एक एरिया पे उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं राइट. तो इसी वजह से हम इसमें डिफाइन करते हैं कि हमारे पास इज वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर एरिया पे राइट अगर आप बढ़ा रहे हो उस एरिया को तो वी विल से कि आपका यहाँ पर उस एरिया को बढ़ाने की वजह से स्पीशीज रिचनेस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी राइट. सबको क्लियर हो गया? z की वैल्यू समझ आई बेटा? रिग्रेशन कोफिशिएंट z इज बीइंग द वन व्हिच इज लेफ्ट ओवर देयर राइट, जिसके बेसिस पे आप ये डिफाइन करोगे कि आपका स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, किस हिसाब से आपका राइट कैसे हम यहाँ पर चेंज ऑब्जर्व करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द चेंज इन इट राइट. और कैसे हम ये कहेंगे कि z की वैल्यू हमारे पास चेंज होगी, क्योंकि z की वैल्यू बढ़ती कब है? जब आप उसके अंदर एरिया को ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ाते हो, लार्ज एरिया को सपोर्ट करते हो राइट. कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड? Good. Now moving to the next one, steeper the slope. Yes, steeper the slope means more diversity. बिल्कुल, steeper the slope means more diversity. आप slope को देखो, अगर आप slope को steep करोगे तो क्या होगा? straight line की तरफ move करेगा ना, और जब straight line की तरफ move करेगा मतलब direct relationship है, वो limit वहाँ पर designate कर ही नहीं रही, right? तो उसे आप यहाँ पर define करते हो,
भी क्लियर हुआ पॉइंट सबको? राइट, ओके गाइस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब इसी के बाद ये हमारे पास हो गए दो जो हमने यहाँ पर पढ़े कि किस तरीके से हम ये डिफाइन करते हैं, व्हाट आर द टू मेन राइट पैटर्न्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हमने यहाँ पर डिफाइन किया। अब इसी के बाद आते हैं विद द नेक्स्ट वन, राइट, स्टेटिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू एन इकोसिस्टम। राइट, स्पीशीज डाइवर्सिटी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम के लिए वो हम पढ़ेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू एन इकोसिस्टम। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट अच्छे से इसका समझना है। राइट, तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है बेटा। राइट, बस थोड़ा सा आपको फोकस रहना है इसके अंदर, एल्स इसके अंदर बहुत आराम से काम हो जाएगा, क्योंकि याद करने का काम बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, दैट आई अंडरस्टैंड। राइट, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। राइट, तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन ओवर हियर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू एन इकोसिस्टम। अब हमने कहा कि हम स्पीशीज डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं एक इकोसिस्टम में। राइट, तो simply say that the high species diversity at an area leads to, नहीं, जितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी उस एरिया में होगी, राइट, वो किसको लीड करेगा हमारे पास, हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी। राइट, वो एरिया कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, लीड्स टू मोर स्टेबिलिटी, उसी के साथ साथ हाई प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मोर रेजिस्टेंस और रेजिलियंस among organisms against exotic species और the alien species, इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस और रेजिलियंस बढ़ जाएगा। राइट, और उसी के साथ साथ हेल्दी इकोसिस्टम। तो ये चार हमारे पास हो गए जो इफेक्ट अप होंगे बिकॉज ऑफ द हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, इसकी वजह से हमें ये देखना है क्या क्या चेंजेस हमें यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहे हैं। राइट, तो अब हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया कि ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा उनसे ये सब कुछ होता है। राइट, बट इनमें से भी सबसे मेन क्या है, दैट इज बीइंग द वन स्टेबिलिटी, राइट, एंड हेल्दी इकोसिस्टम। राइट, इफ वी विल डिफाइन बेटा, हमने कहा इकोसिस्टम इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीशीज जेनेटिकली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद लेस। दैट्स अ फैक्ट। राइट, जहाँ पर भी, अब देखो, जहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज हैं वहीं पर तो आपका कंपटीशन भी हो रहा है, वहीं पर प्रेडेशन भी हो रहा है, तो सर्वाइवल ऑफ बेस्ट उसी एरिया में हो रहा होगा ना। जहाँ तो ऑलरेडी कम है वहाँ क्या ही सर्वाइवल ऑफ बेस्ट कराओगे। राइट, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे ही करा सकते हो वहाँ पर। राइट, तो इसी वजह से वो कराने के लिए हमने यहाँ पर डिफाइन किया that community with more species tend to be more stable than those community with the lesser species, right? तो अब मेन आता है, सबसे पहले फैक्टर पे हम आते हैं, that is the stability। दो फैक्टर पढ़ेंगे, stability and the second one is the ecosystem health, right? Now moving to the stability guys, हमने कहा एक कम्युनिटी को अगर आपने एक इकोसिस्टम को स्टेबल बनाना है, राइट, तो व्हाट आर द फैक्ट्स बाय विच द कम्युनिटी और द इकोसिस्टम हैज टू बी मेड स्टेबल। कैसे आप उसे स्टेबल बना सकते हो, राइट? तो वी विल से स्टेबिलिटी कैन ओनली बी अचीव व्हेन वी डिफाइन, जब हम ये डिफाइन करते हैं, राइट, कि हमारे पास जो एक पूरा का पूरा कम्युनिटी है, राइट, उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो लेकिन वो प्रोडक्टिविटी वेरिएबल ना हो, मतलब ईयर टू ईयर कॉन्स्टेंट प्रोडक्टिविटी आए। राइट, तो हमने कहा स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस प्रोडक्टिविटी में शो नहीं होनी चाहिए फ्रॉम ईयर टू ईयर। It must be either resistant or resilient to the occasional disturbances and must also be resistant to invasion by the alien species. Right, तो हमने यहाँ पर दो मेन चीजें डिफाइन की, राइट, स्टेबिलिटी के लिए, कि उसके पास एक तो वेरिएशन नहीं होना चाहिए, और जितना ज़्यादा उसे वेरिएशन आया, राइट, उसके बेसिस पे हमें कहेंगे इट इज़ बीइंग द वन, राइट, जो आपका यहाँ पर इधर रेजिस्टेंट रहेगा, राइट, ऑपरेशनल डिस्टर्बेंसेस से, या फिर हमारे पास कैसा रहेगा, रेजिलियंस को डेवलप करेगा। रेजिलियंस मतलब होता है पोटेंशियल अगेंस्ट वर्क, राइट,
साइलियंस पोटेंशियल, रेजिस्टेंस का मतलब रोक देना, तो उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, राइट। नाउ वी विल से ओवर हियर, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर इसलिए हमने एलियन स्पीशीज से क्या कराना है, इन्वेजन कराना, राइट। और वहीं पर हमने यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ द डिस्टर्बेंसेस हैज गोइंग टू बी डन, फाइन, राइट। सो नाउ अब इसी को एक्सप्लेन किया डेविड टिलमैन ने, right? The David Tillman is being the one which is organizing a long-term ecosystem experiment, right? कि आउटडोर प्लॉट को यूज करके वो 1-to-1 आंसर कैरी कर रहे थे वहाँ पर एक छोटा सा, राइट, खुद का एक मैन-मेड इकोसिस्टम बनाए ताकि उनको समझ आ सके कि हाँ ठीक है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, दिस इज हाउ द बायोडाइवर्सिटी विल फ्लरिश, राइट। सो उसी ग्राउंड पे उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले एक प्लॉट एक्सपेरिमेंट किया, दिस कॉल्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक प्लॉट्स ऐसे बनाए थे, प्लॉट्स का मतलब जगह नहीं, प्लॉट्स का मतलब वो एरिया जो उन्होंने डिफाइन किए थे जहाँ पर वो काम करेंगे, right? So on that account, he says that the outdoor plots provide so much negative information when, yes, Tillman found that the plot with the more species will show less to less year variation defined less, right? It also showed that in his life experiment, we went increased away, right? We basically the पूरा का पूरा डाइवर्सिटी जो है हमारे पास, हाई प्रोडक्टिविटी को तभी शो कर सकते हैं जब आपके पास कोई वेरिएशन ना हो टोटल बायोमास में, और उसी के साथ साथ तो रेजिलियंस का पोटेंशियल ना। अगर ये सब कुछ हो जाएगा तभी हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, हमारे पास अच्छे से वो कम्युनिटी ग्रो कर रहा है, राइट। फिर उसके बाद हमने कहा नेक्स्ट वन इज द इकोसिस्टम हेल्थ, फाइन। अब हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम कैसे हम डिफाइन करते हैं, right? So it is being explained with respect to a hypothesis called Rivett-Popper hypothesis. एक hypothesis explain किया, Rivett-Popper hypothesis. And according to this hypothesis, क्या कहा गया basically? Fine, right? Now Rivett-Popper hypothesis में उन्होंने experiment किया बेटा. I have taken an aeroplane. उसके through ये experiment किया गया.
Okay, when am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible now? Yes, guys. So we were talking about this Rivett-Popper hypothesis. Rivett-Popper hypothesis, that's a hypothesis given by the Paul Ehrlich. उन्होंने सिंपल सा एक पॉइंट डिफाइन किया कि अगर हम इकोसिस्टम में देखते हैं, नहीं तो हमने कहा बहुत सारी स्पीशीज, थाउजेंड ऑफ द स्पीशीज वर्ल्ड, डायरेक्ट छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आपको बताऊंगी, बताना इसमें, राइट, कि व्हाट शुड बी द वन, राइट. इन्होंने कहा कि लेट अस सपोज दो एरोप्लेन्स हैं, राइट, एंड इफ वी विल टेक द टू एरोप्लेन्स, राइट, दोनों में जो पैसेंजर्स बैठे हैं दोनों को एक टास्क दिया गया है कि द एरोप्लेन वन पैसेंजर्स हैव टू टेक आउट ईच एंड एवरी रिवेट लेंगे, एक एक करके रिवेट लेंगे, राइट, एंड विल टेक आउट विद फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द एरोप्लेन. रिवेट क्या होता है? रिवेट का मतलब होता है पेज, छोटे छोटे पेज होते हैं ना जो फ्लाइट सेफ्टी वगैरह के लिए, सारे सीट्स को टैग करने के लिए, विंडोज पे जो लगे होते हैं, राइट, ताकि उसका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर नॉर्मल बना रहे, राइट. तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये रिवेट्स प्रेजेंट है और ये रिवेट्स को आप अटैच करो, राइट, और रिवेट्स जो है उसको पॉप आउट करेंगे पैसेंजर्स, राइट, आप स्टार्ट पॉपिंग आउट दी रिवेट्स एंड विल टेक होम अकॉर्डिंगली, राइट. तो एरोप्लेन वन वाले पैसेंजर्स ने वो काम करना शुरू कर दिया. अब एरोप्लेन बी वाले जो आए, एरोप्लेन बी वाले ने क्या किया, एरोप्लेन बी वालों को बोला गया कि यू हैव टू टेक आउट द रिवेट नॉट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द एरोप्लेन बट फ्रॉम द एक्सटीरियर, दैट इज फ्रॉम द विंग्स वाले पार्ट से आपको रिवेट्स को हटाना है, राइट. यू हैव टू टेक द रिवेट्स फ्रॉम देयर ओनली. नाउ टेल मी, अगर हम यहाँ पर देखें दोनों को, अगर मैं देखूँ यहाँ पर इन द कंप्लीट बोथ ऑफ द एरोप्लेन ए एंड बी, कौन सा ऐसा होगा जिसमें से रिवेट्स के रिमूवल पे सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है, राइट, हु सफर्ड विद द मोस्ट डैमेज, राइट, जिसकी वजह से उसका फंक्शन का लॉस हो गया इकोसिस्टम का, दैट इज सॉरी एरोप्लेन के फंक्शन का लॉस हो गया. ए या बी? राइट, बिल्कुल. तो अगर हम यहाँ पर हम क्या कहेंगे बेटा, वंस अगेन आई विल से द पॉइंट, फिर से मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर. इफ आई विल से ओवर हियर, हमने ये पॉइंट डिफाइन किया कि लेट अस सपोज, राइट, वी आर गोइंग टू हैव द टू एरोप्लेन्स विद अस, राइट. एक में जो पैसेंजर्स बैठे हैं, आपने उनको टास्क दिया दैट यू विल टेक द रिवेट्स फॉर द इंटीरियर एंड टेक इट अलॉन्ग विद यू, राइट. एंड नेक्स्ट वन, दूसरे एरोप्लेन में जो थे पैसेंजर्स, उनको आपने टास्क दिया कि रिवेट्स विच आर देयर अटैच ऑन द विंग्स, राइट, विल बी टेकन अवे बाय यू, राइट. तो विच एरोप्लेन विल लूज इट्स फंक्शन प्रॉपरली, किसने अपना फंक्शन पूरी तरीके से लूज कर दिया, बी या ए? बी. वेरी गुड, राइट. क्योंकि बी वाले केस में आपने जो रिवेट्स लिए वो रिवेट्स और जो विंग्स लिए हैं, राइट, जो विंग्स के रिवेट्स आपने वहां पर लिए हैं वो बेसिकली किसको सिग्निफाई कर रहे हैं, राइट, दैट रिवेट्स ऑन द विंग, राइट, दे आर बेसिकली सिग्निफाइंग द वन, राइट. वो हमारे पास स्पेसिफिकली किसको सिग्निफाई करेंगे कि कितने हमारे पास जो मेन, उसका सबसे मेन पार्ट है वो है हमारे पास, सबसे मेन पार्ट है वो है हमारे पास, इट्स बीइंग द वन जो एक्चुअल में, राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, उसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया. तो अब हमने कहा यहाँ पर अगर हम सबसे इसमें डिफाइन करते हैं, तो जैसे मैं अगर इकोसिस्टम की बात करती हूँ, लेट अस सपोज आप इकोसिस्टम में से ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हो, राइट, ऑर्गेनिजम्स वहाँ से खत्म होते चले जा रहे हैं, राइट. तो आप धीरे धीरे खत्म करो, लेकिन एक जगह पे आपने क्या किया, कीस्टोन स्पीशीज को ही हटा दिया. तो अगर आप कीस्टोन स्पीशीज को हटा दोगे बेटा, तो बाय द लॉस ऑफ द कीस्टोन स्पीशीज क्या वो इकोसिस्टम कभी काम कर पाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट आर द कीस्टोन स्पीशीज, एक बार बताओ जरा मुझे कीस्टोन स्पीशीज क्या होती हैं, ताकि ये मुझे पता चले कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं. क्या बताया था मैंने, कीस्टोन स्पीशीज किसे कहते हैं हम? डिफाइन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, और वी कैन से दे आर बीइंग द वन जो लेस पॉपुलेटेड होती है, राइट. रिमेंबर कीस्टोन स्पीशीज आर द वन जिनकी पॉपुलेशन कम है हमारे पास, लेस पॉपुलेटेड, लेकिन उनका इफेक्ट सबसे ज्यादा है. दे हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ओवर द इकोसिस्टम हेल्थ, राइट. तो अगर मैं ऐसी की स्पीशीज को हटा दूं, तो क्या उन की स्पीशीज के हटने की वजह से, राइट, पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो अनहेल्दी होता चला जाएगा, पूरा का पूरा इकोसिस्टम फंक्शन का लॉस कर देगा, राइट. तो इसी वजह से अगर एरोप्लेन बी में से आपने रिवेट्स ऑन विंग को हटा दिया, तो रिवेट्स ऑन विंग्स हटने से वजह से बाहरी इंटीरियर उसका डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई बात नहीं, एक्सटर्नल तो विंग्स प्रेजेंट थे ना, इट कैन फ्लाई ना, लेकिन तो उसने अब तो अपनी फ्लाइंग की एबिलिटी छोड़ दी, राइट. इसी वजह से हमने उसी तरीके से कहा कि जो रिवेट ऑफ विंग है इसके अंदर वो किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कीस्टोन स्पीशीज को, एंड ऑल द अदर रिवेट्स आर डिफाइनिंग द रेस्ट ऑफ द अदर स्पीशीज व्हिच आर बीइंग प्रेजेंट, राइट. तो इसी वजह से हमने कहा मोर द कीस्टोन स्पीशीज इन एन एरिया, राइट, जितनी ज्यादा मोर द keystone species at an area,
which will be the species diversity of zone. Right. B to our point. Right. Rivet popper hypothesis, which is being given by Paul Ehrlich. If an aeroplane ecosystem, all the parts are joined through using a thousand of rivets, that is the species. So ecosystem और दोनों के हिसाब से समझना है. Right. If every passenger taken start popping out a rivet to take home, it may not affect the flight safety, but as more as the rivets are removed, right, plane get dangerously weak over a period of time. Furthermore, furthermore, right, which rivet is removed is also critical. Loss of the rivet on the wings that drive the major ecosystem function is obviously a more serious threat to flight safety than the loss of few rivets on the seats or inside or windows inside the plane. Clear हुआ point? Done है? Right, तो दोनों effects सबको समझ आ गए हैं. Right, what are the main two effects of the species diversity on an ecosystem? Now, we say when we talk about the loss of the biodiversity, जब biodiversity के loss की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है क्या क्या causes है loss के. फिर उसके बाद आप कैसे उन्हें treat करोगे. तो what are the causes first of all, and then how you are going to treat it. Right, तो हम कहते हैं, अच्छा एक बात मुझे बताओ, if I will say loss of biodiversity, can I name it as genetic erosion? क्या मैं biodiversity को नाम genetic erosion का दे सकती हूँ? Think about it and tell me. Genetic erosion, right? कैसे हम कहेंगे? अगर हम बेसिकली इरोजन का वर्ड का मीनिंग देखते हैं तो इरोजन सिंपली मीन्स अ टेक अवे, राइट. तो अगर आप बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर रहे हो तो आप सिग्निफिकेंट कुछ स्पीशीज का लॉस कर रहे हो उस एरिया से. जब उस एरिया से कुछ स्पीशीज का ही लॉस हो रहा है, उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है या नियर टू एंडेंजर्ड भी पहुंच गए, राइट, धीरे धीरे क्या होगा, हमारे पास फाइनली डाइवर्सिटी तो फिनिश हो जाएगी, राइट. सो बेस्ड ऑन दैट वी विल से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज बीइंग नाउ नेम्ड एज जेनेटिक इरोजन, राइट. और उसी के साथ साथ इट्स बीइंग वन, राइट, जो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है यहाँ पर, राइट, जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत सारी स्पीशीज तो इवन ऐसे हैं जो बेसिकली, राइट, बिकॉज ऑफ द हंटिंग एंड पोचिंग एक्टिविटीज मर चुके हैं, राइट, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, राइट. तो उस वजह से अगर हमने यहाँ पर देखा तो इट्स नॉट वेरी डाउटफुल दैट इफ न्यू स्पीशीज आर बीइंग एडेड, राइट, देन नो डाउट दैट अबाउट द कंटिन्यूइंग स्पीशीज हैव बीन टेकन आउट, right. The biological wealth of our planet has been declining. Planet की बात करें, not about the country. Right. हमारे पास बहुत अच्छे से हमने कहा यहाँ पर डिक्लाइन होगा, right, has been declining or rapidly and accusing fingers pointing to the human activity, right. Basically human activity is being the major responsibility for this, right. उसी की वजह से IUCN रेड लिस्ट डेटा बुक के हिसाब से, being the red data book हम इसे कहते हैं, right, इसके हिसाब से ये दिया गया, right, the expression of tropical Pacific line is said to have the extinction of more than 2000 species related bird, right. The IUCN red list 2004, IUCN red list 2004, right, documents the extinction of 784 species, right. आपको भले ही नंबर याद ना रहे बेटा, लेकिन स्पीशीज के नाम याद रखना which have been lost by him, right. Basically यहाँ पर extinction of 784 species 987, राइट. सो बेसिकली ये हमारे पास है जो हमारे पास बिल्कुल अच्छे से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उन्होंने एक्सटिंक्शन को डिफाइन किया, राइट, फॉर द वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट्स का इन द लास्ट 500 इयर्स के अंदर. एंड देन ही एक्सप्लेन दैट सम एग्जांपल्स जो नॉर्मल एक्सटिंक्शन के प्रेजेंट है, जो एलियन स्पीशीज वाले हैं, राइट, दे आर बीइंग द वन जो लाइक डोडो इन द मॉरिशस हैज बीन कंप्लीटली, राइट, लॉस्ट, राइट. देन द क्वागा इन द अफ्रीका, थैलेसिन इन द अमेरिका, स्टीरासिकाओ, राइट, एंड अदर, राइट, वी विल से सब स्पीशीज ऑफ द टाइगर. ये बेसिकली नाम जरूर याद होने चाहिए सारे के सारे, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाते हैं, राइट. तो अब पॉइंट आता है कि आप करेंट एनालिसिस अगर मॉडलिंग करते हैं, हाउ वी हैव डन विद द मॉडलिंग, राइट, फॉर द वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, राइट. तो इफ वी विल डू दिस, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, राइट, हमें बेसिकली इसके अंदर देखना होगा कि हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, दैट इज एक्स2 इन-सिटू कंजर्वेशन, जो मैं आपको बताऊंगी अभी आगे चल के कि वो कैसे करने वाले हैं. उससे पहले अगर हम लॉस देखें इसका, so we will say according to the, right, grim scenario of the extinction, more than 15,500 of the birds, right, 23 for the animal, 32 for the amphibians, 31 for the gymnosperm, right, all have been facing the threat of the extinction, right. So from the study of the history of view on earth, right, तो हमने यहाँ पर कहा कि loss of species सबसे ज़्यादा है, species extinction सबसे ज़्यादा है, right, and on that particular basis,
Okay, is it fine, everyone? Okay, is my voice coming? क्या बीच में वॉइस ही नहीं आ रही थी? तो सारा मैंने बोल दिया, कोई आवाज ही नहीं आई। नो मैम, आवाज नहीं थी। आवाज नहीं आई? कहाँ तक आपने सुना था? कहाँ तक बोला था मैंने? फिर बताओ कहाँ तक आपको सुनाई दिया था? फर्स्ट पैरा हो गया था? देखो चलो यहीं से स्टार्ट करती हूँ। ओके, नो वरीज। राइट, नाउ इफ यू विल सी ओवर हियर गाइस, हमने यहाँ पर ये कहा कि हम जब पूरा इसका देख रहे हैं कि हमारे पास एक्सटेंशन किस तरीके हो रहा है, तो एडिंग टू द पूरा का पूरा ग्रिम सिनेरियो अगर एक्सटेंशन का देखें, राइट, तो हमारे पास कितने मैमल्स, कितने बर्ड्स, कितने मैमल्स, राइट, मैमल्स के सॉरी कितने बर्ड्स हैं, कितने हमारे पास मैमल्स हैं, कितने हमारे पास एम्फीबियंस हैं, कितने जिम्नोस्पर्म्स हैं, राइट, दे आर गोइंग फेसिंग द कंप्लीट थ्रेड, पूरे अच्छे खासे थ्रेड को फेस कर रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से एक पाई चार्ट भी आ जाता है इनके ऊपर, राइट, एंड रिमेंबरिंग द ऑर्डरिंग, जिसके अंदर सबसे मेन मेंबर्स हैं हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स एंड एम्फीबियंस। Gymnosperm and amphibians are the major two groups राइट, ये मेन दो हमारे पास ग्रुप्स हैं, राइट, जो फेस कर रहे हैं इस टाइम पे नाउ। इसी के बाद हमने कहा यहाँ पर, राइट, ऑर्डर नंबर्स बस ध्यान रखना है इसमें अच्छे से, राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंप्लीट पीरियड, तो हमें यहाँ पर डिफाइन हुआ कि इतने ज़्यादा हमारे पास ऑर्गेनिज्म डेड हो चुके हैं, राइट, और इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का डेड होने का मेन जो हमारे पास रीज़न है बेटा, राइट, दैट्स बीइंग द वन एज अ नेचुरल एक्सटिंक्शन, नेचुरल एक्सटेंशन किसकी वजह से होगा? हु विल टेल मी? So we see over here guys, हमने कहा यहाँ पर हमारे पास तीन मेन एक्सटिंक्शन है, नेचुरल, मास एंड एंथ्रोपोजेनिक, राइट, ये पेन में आज फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, राइट, बिल्कुल बिल्कुल रावना। तो हमने कहा यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन मैन मेड हो गया, नेचुरल एक्सटिंक्शन हमारे पास हो गया नेचर की एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, और मास एक्सटिंक्शन हमसे कंप्लीट। अच्छा, डायनासोर में किस में रखूँ, जैसे नेचुरल में, मास में, या एंथ्रोपोजेनिक में डायनासोर का कंप्लीट एक्सटिंक्शन? मास, वेरी गुड, राइट, मास एक्सटेंशन, क्योंकि वो कंप्लीट पूरी तरीके से एलिमिनेट हुआ है ना ग्रुप, राइट, तो उसका मास एक्सटेंशन में प्लेस करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब हमने कहा बच्चे, अगर हम बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखते हैं, तो व्हाट विल बी हैपनिंग इन दिस, देयर इज अ डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट, प्रोडक्टिविटी में, वाटर यूज में, पेस्ट में और डिसीज साइकिल में, इन सब में आपके यहाँ पर वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास डाइवर्सिटी में ज्यादा अटैक होने के चांसेस हो गए, राइट। नाउ मूविंग टू द वन दैट इज द कॉजेज ऑफ, राइट, बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या क्या कॉजेज है, कैसे हम इसको देखते हैं कि क्या हमारे पास एक्चुअली में पॉइंट्स है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हमें दिखेगा, राइट। सो वी सिंपली से दैट एक्सेलरेटेड रेट ऑफ द स्पीशीज एक्सटिंक्शन, स्पीशीज एक्सटिंक्शन का जो इतना तेजी से रेट मूव कर रहा है, राइट, दिस एक्सेलरेटेड रेट, राइट, जो बेसिकली हमारे पास इतना ज़्यादा, हमारे पास मेन चार फैक्टर्स की वजह से, चार ऐसे कॉजेज जो मेन कॉज कर रहे हैं इसको। सबसे पहला हमारे पास है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग द प्लांट एंड एनिमल एक्सटिंक्शन, राइट। तो हमने इसका कहा हैबिटेट लॉस, जैसे कि अगर मैं कहती हूँ बेटा यहाँ पर, लेट अस सपोज, राइट, वी आर गोइंग टू हैव दैट, कि हमने इसमें ये लेके चले, राइट, कि ठीक है हमारे पास
एक्सटिंक्शन का मेन आपका सबसे ज्यादा यही है कि अगर मैं एक आज हैबिटेट पे चलती हूँ, इफ आई वांट टू से राइट कि दिस इज बीइंग द वन जहाँ पर हम कोई भी नया जो है आपका यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर कोई और प्लांट ओपन कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करोगे उसका, यू विल जस्ट गो फॉर टू राइट रिमूव आउट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैबिटिंग ओवर देयर राइट, जिसकी वजह से आप उससे क्या कर रहे हो, दे आर बीइंग रिमूव आउट फ्रॉम द सिस्टम, सो दे बिकम द राइट हैबिटेट लॉस। और फ्रैगमेंटेशन होता है, छोटे छोटे पीस में आप तोड़ रहे हो उसको राइट, सो दैट यू कैन गो फॉर इट राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कहना चाहिए, हैबिटेट लॉस right, and fragmentation is being the one which become the one of the major cause right, most का सबसे best example dramatical entry of the right आपका यहाँ पर हमने कहा कि इसके अंदर tropical rainforest which cover about Amazonian rainforest 14% of that body, but among the total only 6% less than now 4.9% right, that's being the one जो आपका यहाँ पर right cover कर रहा है हमारे पास उसके comparatively राइट। सो हमने यहाँ पर डिफाइन किया राइट, इट्स बीइंग द वन जहाँ पर हमने कहा ठीक है हमारे पे अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट का इतना ज़्यादा डैमेज हो रहा है हैबिटेट लॉस की वजह से, फ्रैगमेंटेशन की वजह से कि आज लंग ऑफ द प्लैनेट का 14% एरिया कवर से हम 6% कवर एरिया पे आ चुके हैं राइट। और इस टोटल लॉस के अलावा डिस्ट्रक्शन बहुत सारे का आपका यहाँ पर सिर्फ इस वजह से नहीं, देयर इज ऑल्सो बीइंग द वन राइट रीजन ड्यू टू दी पोल्यूशन एट्रीब्यूट्स की वजह से भी ज़्यादा लॉस होता है हमारे पास राइट। तो अब उसकी वजह से हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि मेनी हेंस राइट दे आर ओवर by the same time, once you will finish, 100 more hectare of the rainforest would have been lost. Amazonian rainforest, right, also called as lung of the planet, inhabiting probably million of the species in being cut and carried out, right, for cultivating, right, cultivate करने के लिए, right, उसी के साथ साथ soybean and other for and for converting the organism into the beef fat. Right, so if you have habitat loss and fragmentation consent, right, हमने कहा habitat loss is going to be there, complete fragmentation is going to be there. अब उसके बाद हमने यहाँ पर define किया habitat loss and fragmentation के बाद, right, कि we have the second major cause of the biodiversity loss after habitat loss is over exploitation. Over exploitation का मतलब क्या है, right, that's mean that human always depend on the need of the food or the shelter or the giant like. राइट, सो ऑन दैट बेसिस हमने यहाँ पर कहा कि नाउ द नीड इज बिकमिंग टर्निंग इनटू द ग्रीन राइट, जो नीड किसमें कर रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज राइट। तो अब मैंने कहा बहुत सारी स्पीशीज ऐसी है जिसके एग्जांपल याद रखने कौन कौन से हैं, एक्सटिंक्शन स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजन, what due to the over exploitation by human, pigeon pear right, that's being the one right. Many marine fishes of population around the world are once harvested, endangering the confined existence of the right some species, important species right. तो ये हम बेसिकली लेके चलते हैं कि हमारे पास हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन भी हुआ, उसी के साथ साथ वी हैव द एलियन स्पीशीज का हमने एक्स्ट्रा जो यहाँ पर थे बेसिकली उसकी एक्टिविटी भी देखी, ये हाउ दे आर बीइंग वर्किंग राइट। और उसी के साथ साथ आपका नेक्स्ट वन वी विल से राइट, इट इज गोइंग टू बी द वन दैट इज एलियन स्पीशी इन्वेजन। अब एलियन स्पीशी इन्वेजन का क्या मतलब होता है, समथिंग राइट डिफरेंट राइट विल कम। तो हमने कहा व्हेन एलियन स्पीशीज आर परफॉर्म unintentionally or intentionally right, so on that account for whatever some of the reason turn invade and cause the tremendous species. अब मैं इसके एग्जाम्पल लूंगी, आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ध्यान रखने एलियन स्पीशी इन्वेजन के राइट, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। नंबर फर्स्ट नील पर्च, नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल नील पर्च राइट। तो हमने कहा सबसे पहला एग्जाम्पल आ गया हमारे पास नील पर्च, इंट्रोड्यूस वन into the Lake Victoria in the West Africa and estimated to the extinction of ecological unique assemblage of more than 2000. नेक्स्ट लेंटिन आपका यहाँ पर कैरेट ग्रास right, so carrot grass parthenium right, lentina camera right, they are being the one water hyacinth जो हमारे पास मेन क्या है, they become the one of the most important right, हमारे पास क्या बन चुके हैं right, right। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हमने जब एलियन स्पीशी इन्वेजन की बात की बेटा राइट, तो मैंने कहा सबसे पहले मेरे पास नील पर्च इंट्रोड्यूस हुआ। नील पर्च को हमने एक्चुअली इंट्रोड्यूस कराया था ईस्ट अफ्रीका के राइट, लेक विक्टोरिया के अंदर राइट, जहाँ से नील पर्च एक प्रेडेटर की तरह करा गया कि इट हैज किल्ड ऑल द इकोलॉजिकल यूनिक असेंबलेज ऑफ द 200 स्पीशीज
राइट, फ्रॉम दी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बनाने के लिए, राइट। नील पर्च को एज अ प्रेडेटर यूज किया गया इन ऑर्डर टू किल देम, किकलेट फिशेस के लिए। कैरेट ग्रास सब जानते हैं, पार्थीनिया किसके साथ आई थी पार्थीनिया? इट्स अ वीड व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यू टू द कंटामिनेशन विद okay, right, so हमने कहा it has occupied all the open area exempling the many herbs and shrubs, right। फिर हम उसके बाद अगर लेंटिना की बात करते हैं तो लेंटिना हमारे पास क्या है? स्ट्रैगलिंग श्रब है, राइट, इट्स बीइंग द वन, राइट, जो हमारे पास प्रेजेंट है। वाटर हाइसिंथ, अच्छा वाटर हाइसिंथ किसे प्रोपगेट करता है? राइट, बिल्कुल, तो वाटर हाइसिंथ इज बीइंग द वन। ऑफसेट, रिमेंबर ऑफसेट से प्रोपगेट करता है हमारे पास, राइट, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियन, बिल्कुल, यूरोपियन इंडिया हैज क्लॉग्ड द वाटर बॉडी। अच्छा वाटर हाइसिंथ का एक कॉमन नेम भी है, व्हाट्स द कॉमन नेम ऑफ दैट? तो सबको याद होना चाहिए, राइट, टेरो बंगाल, राइट, तो वी जस्ट नेम दैट एज अ टेरो बंगाल, बिल्कुल ठीक है, राइट, जो हम उनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट वन आपका यहाँ पर एक क्लैरिस इंट्रोड्यूस किया गया था, जो क्वेश्चन अभी मुझसे कोई पूछ रहा था ना क्लैरिस वाला, फॉर एक्वाकल्चर प्रोसेस इज पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिश अमंग अस। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती है? करेक्ट, राइट। अच्छा, को एक्सटिंक्शन का कोई एग्जांपल दो, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ को एक्सटिंक्शन। own ना own country species, think about it, को एक्सटिंक्शन का एग्जांपल। Remember pick and pig bars, trapdoor mechanism, right? Right, Yucca and Tanuba Yucca Selam, right? They're what? They are the obligate symbiotic relationship. Right, now coexistence when a species become extinct plant and the animal species also in the obligatory way also become extinct. Obviously, what? When the host fish become extinct, its unique assemblage of parasite also mirror the same fate. They are the one. अगर आप एक पर्टिकुलर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ को एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, एक का अगर एक्सटिंक्शन कराओगे दूसरा ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या लग जाएगा? एक्सटिंक्ट, राइट, दैट इज कॉल्ड एज द को एक्सटिंक्शन। फाइन, राइट। अच्छा, कौन सी इंटरेक्शन में को एक्सिस्टेंस वी स्टडीड? In which population interaction do the two members have to exist together? Mutualism. Very good. Rajul, mutualism beta. याद रहेंगे पॉइंट सबको? All the four things which are leading to the loss of the biodiversity. Number first कौन सा था? Quickly everyone, number first. Habitat loss and fragmentation. इसी ऑर्डर में याद करना है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन। Rajul, that's correct, but only for endoparasitism. ठीक है, correct, okay. Now moving to the biodiversity conservation, why we should conserve biodiversity. Now अब हमने कहा बेनिफिट्स जो है बायोडाइवर्सिटी के, उसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया।
यूटिलेरियन, ब्रॉडली यूटिलेरियन एंड राइट। अब क्या होता है नैरो यूटिलेरियन जो है हमारे पास इंडिग्रेन। Now, if we will talk about narrow utilitarian guys, so biodiversity को हमारे पास जो करता है वो किस तरीके से, because it's affecting the human, ये human से related जितने benefits हैं ना उनको damage कर देता है, right? That is direct effect हम इसे कहते हैं. It is also called direct effect because human drive a countless direct economic benefit then from the natural food, right? So we will say in this condition, fruit, firewood, and along with this now next one, इसमें हमने कहा more than 25% of the plants or the drugs currently sold into the market worldwide from the plant, and 25,000 species of the plant contribute to 11 different traditional medicines. Okay everyone, am I audible?
now, or it's still Yes, fluctuating? ma'am. Okay, good. Some net issues are there. That's why it's just showing some fluctuations. बार-बार exit हो जाता है meeting. Okay guys, so we were talking about this. So हमने कहा why do we conserve biodiversity? तो हमने 3 लिस्ट के मेन उसमें डिवाइड कर दिया, नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, एथिकल. नैरो का मतलब क्या है? ह्यूमन डिराइव काउंट एज डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स. जो ह्यूमन को डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स नेचर से मिल रहे हैं. नेचर से क्या क्या उसको बेनिफिट मिल रहा है? लाइक द फूड इट इज बीइंग गेटिंग, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, राइट. उसी के साथ साथ प्रोडक्ट्स हो गए, मेडिकल इंपॉर्टेंस के. अभी देखा जाए तो इतनी सारी ड्रग्स. अच्छा, एक आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में ड्रग्स का पार्ट पढ़ा होगा, राइट. अबाउट द टेबल, लाइक क्वीन की अगर बात करें तो वो हमारे पास हो गया एक ड्रग, राइट. टेक्सोल. टेक्सोल किससे मिलता है? जिम्नो एनजीओ. Taxol is derived from the bark of the Texas, where Texas is a gymnosperm or an angiosperm. Texas किसका मेंबर है हमारे पास? Texas is a member of the right gymnosperm. जिम्नोस्पर्म का मेंबर है. तो हमने कहा ऑन दैट कंडीशन वी हैव टू राइट मेक कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेशन हो सके, स्पीशीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेशन कर सके, राइट, सो दैट वी कैन हैव दैट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट ड्राइव कर सकें. एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइज, नैरो यूटिलिटेरियन आर द डायरेक्ट बेनिफिट. ह्यूमन को डायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, जिसके बेसिस पर हम एक स्टडी और करते हैं, राइट, विच इज़ कॉल्ड बायो प्रोस्पेक्टिंग. Now what is this bioprospecting? राइट, क्योंकि अभी हम नहीं जानते कि कितने और मेडिसिनल प्लांट शायद इस अर्थ पे है. हमें एक्सप्लोर करना और ज़्यादा ज़रूरी है इसको, राइट. तो विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू द बायोप्रोस्पेक्टिंग, एक्सप्लोर करना मॉलिक्यूलर, जेनेटिक और स्पीशीज लेवल बायोडाइवर्सिटी को फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, राइट. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए अगर हम देखते हैं, मतलब आपने क्या किया, आपने लेटर सपोज एक प्लांट को एक्सट्रैक्ट किया, उस प्लांट को आपने सर्च करना शुरू किया, आपने उसके सारे मॉलिक्यूलर, जेनेटिक, स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी को देखा कि उसके अंदर कितने डिफरेंट टाइप के वेराइटीज़ हैं, राइट. क्या क्या उसके अंदर अलील्स प्रेजेंट हैं, उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे गए कि किस तरीके से डीएनए से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोटीन मिल सकता है, एंड व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ द थिंग्स आई एम गोइंग टू गेट. तो वो सब कुछ एक्सप्लोर करना ताकि आप उस प्लांट से भी कोई ना कोई बेनिफिट को डिराइव कर सको, राइट. तो ये हमारे पास क्या कहलाया जाता है? कॉल्ड एज अ नैरो यूटिलिटेरियन बेनिफिट्स. हम नैरो यूटिलिटेरियन का नाम देते हैं. लेकिन ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट कौन से होते हैं हमारे पास? जहाँ हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी एक मेन रोल प्ले करता है, राइट, उन सर्विसेज में जो उसे नेचर प्रोवाइड कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, राइट, हमने कहा जैसे कि अभी लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट द अमेज़न एंड रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, तो जो प्रोड्यूस करता है, और ये कौन से बेनिफिट है? दे आर द इनडायरेक्ट बेनिफिट्स. ये इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है. इनडायरेक्ट बेनिफिट्स का मतलब ये वो बेनिफिट्स है जो एनवायरमेंट को मिलता है और एनवायरमेंट के थ्रू ह्यूमन को मिलता है. They are the benefits which are being available to the environment, and from environment they are getting by the human. तो you will say example लेके चलते हैं, जैसे कि राइट अगर आपने कहा यहाँ पर ऑक्सीजन, राइट, तो हमने कहा पहला हमारे पास सर्विसेज हो गया दैट वी आर गेटिंग द इनफ अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, राइट. सेकंड हो गया पॉलिनेशन हमारे पास, सेकंड फैक्टर, राइट, प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अनदर सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेशन लेयर्स के थ्रू प्रोवाइड करता है, राइट. फिर उसी के साथ साथ हमने कहा दी अनदर वन विच इज बीइंग देयर, राइट, कि हमारे पास जितने एनवायरमेंटल बैलेंसेस बनने के लिए हो रहे हैं फॉर फॉर्मिंग द एनवायरमेंटल बैलेंसेस इन इकोसिस्टम, राइट, वो जितने भी हमारे पास इफेक्ट्स कॉज हो रहे हैं वो भी किस में चले गए थे? ऑल्सो कम अप इनटू द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में हमने भेज दिया. तो बहुत ध्यान से याद रखना बेटा कौन से डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स में, कौन से इनडायरेक्ट में है. तो ऑक्सीजन हो गया. एसिडिक फ्लड एंड इरोजन कंट्रोल लिख लेते हैं, चलो, राइट. फ्लड एंड इरोजन कंट्रोल, राइट. तो फ्लड और इरोजन का जो कंट्रोल हो रहा है वो भी तो प्लांट्स ही करा रहे हैं हमारे पास, राइट. एंड द फोर्थ इफेक्ट इज बीइंग द एस्थेटिक प्लेजर, राइट. एस्थेटिक प्लेजर का मतलब फीलिंग गुड, राइट. तो वो भी हमारे पास बेसिकली कौन देते हैं? प्लांट्स देते हैं, राइट. उसी के बाद हमने कहा व्हाट आर द एथिकल बेनिफिट्स. एथिकल बेनिफिट्स का मतलब अब बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स को स्पिरिचुअली बेसिकली वैल्यूज कनेक्टेड है. स्पिरिचुअल वैल्यूज कौन सी होती है? कोई एग्जांपल तो प्लांट का जिससे स्पिरिचुअल वैल्यू कनेक्टेड है. कैन आई से तुलसी, राइट, यस, एग्जैक्टली. तो उन स्पिरिचुअल वैल्यू की वजह से ये ऑलरेडी ऐसा है ना सिस्टम कि स्पिरिचुअल वैल्यू की वजह से हमें पता है कि स्पीशीज की इन्फ्लुएंस से क्या है, ऑलरेडी पॉपुलेशन उसको कंजर्व कर रही है. पॉपुलेशन इज कंजर्विंग दैट. हम कंजर्व नहीं कर रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन का मतलब उसके ऑर्गेनिज्म से रादर ह्यूमन पॉपुलेशन उसको कंजर्व कर रही है, राइट. फ्यूचर जनरेशन और बायोलॉजिकल लेगेसी को एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए एक मॉरल ड्यूटी है हमारी, राइट. जिसकी स्पिरिचुअल वैल्यू का मतलब लाइक वी वर्शिप समथिंग,
राइट, जैसे हम जिस चीज को वर्शिप करते हैं, जस्ट हैविंग सम वैल्यू, उसकी वजह से आप उसको वर्शिपिंग में ले रहे हो, तो वो स्पिरिचुअल वैल्यूज होती है। तो उसके बेसिस पे आप लेके चलते हो, एथिकल आर्ग्यूमेंट्स आर बीइंग देयर कि प्लांट, एनिमल, माइक्रोब स्पीशीज को आप शेयर कर रहे हो जो फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट है। तो हर स्पीशी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, राइट। उसके बेसिस पे हर घर में देखो तुलसी का पेड़ तो मिलता ही मिलता है, पौधा मिलता है हमें, राइट। तो ऑन दैट कितना ज्यादा हम प्रोपगेशन तुलसी का देख रहे हैं ना ओवर द अर्थ, राइट। तो इसी वजह से हम कहते हैं दिस एक्सप्लेन्स द एथिकल आर्ग्यूमेंट को, ये एक्सप्लेन करते हैं, राइट। समझ आ गया यहाँ तक का पॉइंट? Everyone understood, right? Benefits clear हो गए, right? अब इसका एक लास्ट पार्ट है in situ ex situ conservation, right? That's the last part for this chapter. और उसी के बाद फिर environmental issue शुरू करके नेक्स्ट टाइम हम वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इकोसिस्टम के क्वेश्चंस, ठीक है? ये कंप्लीट हो जाने चाहिए सबके, राइट? और बायोम्स एक बार पढ़ लोगे, राइट? जो नोट्स है मैं भेज देती हूँ, राइट? एंड रीड द बायोम कंप्लीट, फाइन, ओके डन है। आज थोड़ा सा क्लास में वो नेट की वजह से प्रॉब्लम रहा, कोई बात नहीं, थर्सडे को कंप्लीट कर लेंगे। मैंने सोचा था आज कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर आपका, राइट? तो अच्छा हो जाएगा, बट नो वरीज, राइट? हाँ, मैं लास्ट क्लास के नोट्स भी भेज दूंगी अभी, राइट? आई विल सेंड दैट, डोंट वरी, राइट? फाइन, okay guys, so we'll meet you in the coming session, so bye bye, take care, enjoy.